اور اب عالمی منظر تفصیل سے شام کے شمال مشرقی صوبہ ادلب میں شامی فوج اور باغیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ ترکی کے حمایت یافتہ شامی جنگجوؤں نے جمعرات کو شام کے ایک شمال مغربی قصبے پر پھر سے قبضہ کر لیا، جس کو حال ہی میں سرکاری فوج نے باغیوں سے چھین لیا تھا۔ شام کے صوبہ ادلب میں گزشتہ کئی ہفتوں سے شامی فوج اور ترکی کی حمایت یافتہ شامی جنگجوؤں کے درمیان خونریز جھڑپیں جاری ہیں۔ 27 فروری کو باغیوں نے شام کے ایک شمال مغربی قصبے سرقب کو بازیافت کر لیا، جس کو حال ہی میں شامی فوج نے جنگجوؤں کے قبضے سے چھڑا لیا تھا۔ برطانیہ میں قائم شامی آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس علاقے کو واپس لینا شامی صدر بشار الاسد کی افواج کے لیے بہت بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے، جنہوں نے صوبہ ادلب میں روس کی حمایت سے باغیوں کے آخری گڑھ پر قبضہ جمانے کے لیے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ باغیوں نے سرقب کے علاقے پر پھر سے قبضہ جمانے کے لیے بھاری توپ خانے کا استعمال کیا اور میزائلز داغے، جس کے نتیجے میں وہ اس علاقے کے مضافات تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ آبزرویٹری نے مزید کہا کہ باغیوں نے دارالحکومت دمشق کو شمالی شہر حلب کے ساتھ ملانے والی شاہراہ کو کاٹ ڈالا، جسے حکومت نے 2012 کے بعد پہلی مرتبہ کھول دیا تھا۔ ادلب میں شامی فوج کی تازہ کارروائی میں تقریباً 9.5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور سینکڑوں شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس عسکری پیش قدمی کی وجہ سے شامی صوبہ ادلب سے قریب 1 ملین افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ وہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترک فوج ادلب میں شامی فورسز کو ان کی چوکیوں سے رواں ہفتے پیچھے دھکیل دے گی۔ ترکی اس خطے میں باغیوں کی امداد کے لیے اپنے سینکڑوں فوجی تعینات کر چکا ہے۔ واضح ہے کہ روس نے ادلب میں جنگ بندی سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے گزشتہ دنوں باغیوں کے ساتھ جنگ بندی کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور ان کی کارروائیوں کے لیے انعام سے نوازنے کے مترادف ہوگا۔ روس اور ترکی شام میں جاری خانہ جنگی میں متحارب دھڑوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ مشرق وسطی اور مختلف عرب ملکوں میں کورونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مختلف عرب ممالک سمیت کئی اسلامی ملک اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس سے اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں سعودی حکام نے احتیاطی طور پر عمرے کے ویزے کا اجرا بھی معطل کر دیا ہے۔ چین سے پھیلنے والے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی علاقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے ذریعے عمرے کی ادائیگی کے لیے ویزے جاری کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس تناظر میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سیاحتی ویزوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن یہ پابندی عارضی ہے۔ حالانکہ ابھی تک سعودی عرب میں اس بیماری میں مبتلا کسی بھی مریض کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ واقع ہیں۔ لاکھوں عازمین ہر سال حج کے دوران ان شہروں میں واقع مقدس زیارات کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اب دنیا بھر میں کورونا وائرس کی نئی قسم سے نمونیا بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے حج کرنے کا ارادہ رکھنے والے افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دراصل سعودی حکام کی جانب سے یہ غیر معمولی قدم احتیاطی طور پر اٹھایا گیا ہے۔ مقدس مہینے رمضان کے شروع ہونے پر عمرہ کرنے والے زائرین کی تعداد میں اضافے پر ممکنہ طور پر وبا پھیلنے کی تشویش کے مد نظر سعودی حکام کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی ہمسایہ خلیجی ریاستوں متحدہ عرب امارات، عمان، کویت اور بحرین میں کورونا وائرس کی کئی افراد میں تشخیص کی جا چکی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خلیجی ریاستوں میں کورونا وائرس ایران سے واپس لوٹنے والے عرب شہریوں سے پہنچا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 13 مریض اس وائرس میں مبتلا ہیں۔ کویت میں ایسے مریضوں کی تعداد 43 ہے۔ بحرین میں 33 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ عمان میں 4 مریض ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس سے متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ تقریباً 150 افراد میں کورونا وائرس پازیٹو پایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران سمیت مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایران نے کورونا وائرس کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر
इराकी ज़ायरीन पर आर्जी तौर पर पाबंदी भी आयद कर दी है। इराक में ईरानी सफारतखाने के मुताबिक इराकी ज़ायरीन को 6 मार्च तक ईरान के वीज़े नहीं जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इराक में भी कोरोना वायरस के मरीज की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की वजह से इराक के मुख्तलिफ शहरों में मुक़द्दस मकामात पर ज़ायरीन की आमद भी मुतासिर हुई है। अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस के मुतादिद केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में भी 2 अफराद में मुहलिक वायरस कोरोना की तस्दीक हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर चीन में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में कमी आई है। चीन में मजीद 29 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो गए। चीन में हलाकतें 2700 से तजावुज कर चुकी हैं। चीन में कोरोना वायरस का कहर कुछ कम हुआ है। इस मुहलिक वायरस से होने वाली हलाकतों में नुमाया कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 29 हलाकतों की तस्दीक हुई है। चीन में 28 जनवरी के बाद से हलाकतों की ये सबसे कम तादाद है। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 433 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुबाई के शहर शिनजियांग में कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक स्कीम मुतारुफ कराई गई है, जिसकी रूह से जिस शख्स में भी कोरोना वायरस की अलामत हो वो खुद से अपना तिब्बी मुआयना कराए और उसमें कोरोना वायरस साबित हो जाए तो उसे 1400 अमेरिकी डॉलर मुआवजा दिया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद पहली बार वहां से आने वाले केसेस ईरान, जनूबी कोरिया और इटली समेत दिगर ममालिक से आने वाले केसेस से कम हैं। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस से 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मजीद 334 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मरीजों की तादाद 1600 तक पहुंच गई है। इटली यूरोप में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क बन गया है, जहां 300 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 11 की मौत हो गई है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में भी एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हुक्काम का कहना है कि जिस शख्स में वायरस की तस्दीक हुई है उसने किसी दूसरे मुल्क का सफर नहीं किया। ये इस बात का सबूत है कि वायरस लोगों के जरिए दूसरों में मुंतकिल हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से कहना है कि हम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उधर जापान में एक खातून में कोरोना वायरस की दूसरी बार तशखीस हुई है। मकामी हुक्काम का कहना है कि एक ही खातून में दूसरी बार कोरोना वायरस की तशखीस से वबा फैलने के खदशात में इजाफा हुआ है और मुतासरा अफराद की तादाद 180 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस की मौजूदगी की वजह से जापान में जुमेरात को मुसाफिरों से खाली करा लिए जाने के बाद सयाहती बहरी जहाज के अमले को भी अलहदगी में भेज दिया गया है। इस कश्ती पर अमले के 240 अरकान को भी निकाल लिया गया है, जिन्हें अगले 14 रोज तक जेर निगरानी रखा जाएगा। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने स्पोर्ट्स और सकाफती तकरीबात का इनकाद करने वालों से इन तकरीबात को मुलतवी या मनसूख करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने खबरदार किया है कि इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। ऑस्ट्रिया में एक नौजवान इतालवी जोड़ा इस वायरस का शिकार है। उनके घर को सील कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड में इटली की सरहद से लगने वाले एक इलाके में एक बुजुर्ग शख्स इस वायरस का शिकार है। क्रोएशिया में इटली से वापस आने वाला एक शख्स इस बीमारी की लपेट में है, तो वहीं स्पेन में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया है। बार्सिलोना में रहने वाली एक खातून हाल ही में शुमाली इटली से वापस आई थी। ब्राजील में भी हाल ही में शुमाली इटली से वापस आने वाले एक शख्स में ये वायरस पाए जाने की तस्दीक हुई है। स्वीडन, नॉर्वे, यूनान, रोमानिया में भी पहली बार कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। आलमी तंजीम सेहत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि चीन के बाहर कोरोना वायरस का फैलना तशवीश का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर इजराइल की वजारत सेहत ने कहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में इटली से इजराइल वापस आने वाले शख्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासरा इस शख्स को अस्पताल में अलहदा निगहदाश्त में रखा गया। वजारत सेहत का कहना है कि इजराइल में नए वायरस से मुतासिर होने का यह पहला केस है, जबकि मजमूई तौर पर कोरोना में मुब्तला केस की तादाद 3 है। This morning we identified the first traveler from Italy in Israel who is diagnosed with the coronavirus. In general, we add Italy to the list of countries from which we decided that foreigners will not enter Israel.
اور اب بات دہلی تشدد کی کریں گے۔ دہلی فساد میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی ہے۔ دہلی کرائم برانچ نے فساد کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دی ہے۔ فساد متاثرہ دہلی میں حالات معمول پر لوٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کی سڑکوں پر گاڑیاں بھی نظر آئیں، تاہم دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ بس اور میٹرو خدمات بھی دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ امن و امان کی برقراری کے لیے سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے ہیں۔ امن میں رخنہ ڈالنے والے عناصر پر خاص نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ دہلی کے حالات معمول پر لانے کے لیے امن کمیٹیاں کافی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ دہلی پولیس کے PRO مندیپ سنگھ رندھاوا نے جانکاری دی کہ فساد زدہ علاقوں میں مناسب سیکیورٹی فورسز کو تعینات کرنے کے بعد حالات اب قابو میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 48 FIR اب تک درج کی جا چکی ہیں اور تحقیقات کرنے کے بعد اور معاملے درج کیے جائیں گے۔ جو حالات ہیں وہ بالکل نارمل ہیں اور آج کوئی بھی گھٹنا نہیں ہوئی اور فورس ہر ایک جگہ پہ سفیشینٹ ڈپلوائے کی گئی ہے۔ سینئر آفیسرز مانیٹر کر رہے ہیں۔ جو ڈسٹریس کالز تھی اس میں کافی کمی آئی ہیں اور جیسے ہم نے جو کل 2 ہیلپ لائنز بھی آپ کے مادھیم سے پبلک کو بتایا تھا اس پہ بھی کالز آئی ہیں اور ان کو بھی ہم ان کا بھی ریڈریسل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک 48 FIRs ہم رجسٹر کر چکے ہیں۔ کچھ اور بھی FIR ہو رہی ہیں، جیسے جیسے فیکٹس کلیئر ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس آ رہے ہیں، وہ اور FIR ہم رجسٹر کر رہے ہیں۔ اور آج پوری دہلی میں اور اسپیشلی نارتھ ایسٹ میں بھی، پوری دہلی میں بھی ابھی تک جو لاسٹ 2 دن ہے اور اس میں 350 امن کمیٹیز کی ہم میٹنگز کر چکے ہیں۔ ہمارے جو تمام سینئر آفیسرز ہیں وہ ایریا کے جتنے بھی RWs ہیں، MWs ہیں، ریلیجیس لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی سے ان کے ساتھ امن کمیٹی کی میٹنگز کر چکے ہیں اور ایک جو پبلک کے ساتھ رابطہ ہے وہ قائم کیا ہے اور ہمیں پوری آشا ہے کہ ابھی اسی طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہو مین جو روڈز بھی ہیں وہاں پہ بھی ٹریفک نارملائز ہو گیا ہے۔ اور ایک جو میڈیا میں ایشو آ رہا تھا کہ جہاں جو لوگ ہیں ان کو کچھ جو بیسک اسینشیل نیسیسٹیز ہیں کھانے کی چیزیں وہ بھی سفیشینٹ ماترا میں آ رہی ہیں کیونکہ ٹریفک نارمل چل رہا ہے۔ میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں، جو ایمبولینس کی موومنٹ ہے وہ 2 دن پہلے ہی نارملائز کر دی گئی تھی کہ اب تمام جو سیوک ایجنسیز ہیں، BSCS ہے، NDM ایسٹ میونسپل کارپوریشن ہے، ان سے بھی ہم نے پراپر ٹائی اپ کیا ہے۔ جگہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی جگہ یہ صفائی بھی کر چکے ہیں اور بھی جو صاف کر رہے ہیں اور ابھی سچویشن پوری نارمل میں اور پورے کنٹرول۔ ادھر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے فساد میں ہلاک ہونے والے افراد کے ورثاء کو فی کس 10 لاکھ روپے، اگر کوئی بچہ ہلاک ہوا ہے تو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ کیجریوال حکومت نے اس کے علاوہ تجارت میں ہوئے نقصان کی بھرپائی، نجی اسپتالوں میں علاج، چلائے گئے مکانوں کے مکان مالکین کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ ان کی حکومت قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہے گی۔ کیجریوال نے طاہر حسین کا نام لیے جانے پر کہا کہ فسادی کسی بھی پارٹی کا ہو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ جو انجرڈ لوگ ہیں، جو سرکاری ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں، ان کو تو ہم پوری ان کا علاج کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کراتا ہے تو فرشتے اسکیم جو دلی سرکار کی ایکسیڈنٹ وکٹمز کے لیے تھی کہ اگر کوئی بھی روڈ ایکسیڈنٹ وکٹم ہے اور اس کو وہ اگر کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کراتا ہے تو اس کا سارا خرچہ دلی سرکار دیتی ہے، اس فرشتے اسکیم کو رائٹ افیکٹڈ لوگوں کے لیے بھی لاگو کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، کرفیو والے ایریاز کے اندر کچھ لوگوں کو مجھے پتہ چلا تھا کہ دقت آ رہی ہے کیونکہ کرفیو کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں پا رہے، وہاں پہ ہم دلی سرکار کھانا پہنچانے کا انتظام شروع کر دیا آج سے، اور اس میں ہم NGOs کی مدد لے رہے ہیں، RWs کی مدد لے رہے ہیں، لوکل MLAs، کاؤنسلرز، پبلک ریپرزنٹیٹیوز، ان کے ذریعے ہم کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راؤنڈ دا کلاک ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے جا رہے ہیں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے، اور SDMs کو نوڈل آفیسر نیوکت کیا گیا ان سبھی ہیلپ ڈیسکس کے لیے۔ یہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں 6 SDMs ہیں ابھی اور 12 SDMs کو اور نیوکت کیا جا رہا ہے، تو ٹوٹل اس ایریا میں 18 SDMs ہو جائیں گے تاکہ اور گہن طریقے سے
यहाँ पे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। 4 नाइट मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा रही है, जो रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह के रिलीफ की तो वो प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा। आगे बढ़ेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने दिल्ली में हुए बदतरीन फसाद और तशद्दुद की मजम्मत की है, जबकि हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने दिल्ली तशद्दुद मामले पर ओआईसी के मजम्मती बयान को हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया है। गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप। इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने दिल्ली में हुए फसाद और तशद्दुद की मजम्मत की है। ओआईसी ने एक बयान में कहा है कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हालिया खौफनाक तशद्दुद की मजम्मत करता है, जिसके नतीजे में बेकसूर अफराद की हलाकत हुई, बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए, मसाजिद और मुसलमानों के अमलाक को आतिशजनी और तोड़फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाया गया। ओआईसी ने दिल्ली तशद्दुद की मजम्मत करते हुए इसे घिनौना अमल करार दिया। साथ ही फसाद मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ओआईसी ने मोदी हुकूमत से मुस्लिम दुश्मनी का इर्तिकाब करने वालों और इसमें मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने और अपने तमाम मुस्लिम शहरियों की हिफाजत और मुल्क भर में इस्लामी मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कहा। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने ओआईसी के बयान को मुल्क के दाखिली मामले में मुदाखलत करार देते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। एक प्रेस ब्रीफिंग में वजारत खारजा ने ओआईसी यानी इस्लामी ताउन तंजीम के बयानात को गैर जिम्मेदाराना और गलत करार दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने मजीद कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम ने माजी में भी गैर संजीदा तबसरे किए हैं और हिंदुस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरा करने की कोशिश की है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने अपने जवाब में कहा कि हिंदुस्तान तशद्दुद पर काबू पाने और मामूल की बहाली के लिए तमाम इक़दामात कर रहा है। वाज़ेह है कि इतवार के रोज सीएए के हामी और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाद शुमाल मशरिकी दिल्ली में तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने दिल्ली तशद्दुद से मुताल्लिक USCIRF का तबसरा मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा ने दिल्ली तशद्दुद के हवाले से बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक अमरीकी कमीशन USCIRF की जानिब से जाहिर की गई तशवीश को मुस्तरद करते हुए कहा कि कमीशन का तबसरा हक़ाइक़ पर गलत और गुमराहकुन है। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी उमूर से मुताल्लिक अमरीकी कमीशन UECIRF ने दिल्ली तशद्दुद पर तशवीश जाहिर करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की थी। जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, तथ्य पर आधारित नहीं है और मिसलीडिंग भी है, और हमें लगता है कि ये उस मामले को पॉलिटिसाइज करने की ये कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जिनेवा में लीबिया के मुतहरिफ फरीकों के रहनुमाओं के दरमियान अमन मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात की वजह इन मुतहरिफ ग्रुपों के दरमियान तराबलस पर कब्जे के लिए जारी लड़ाई है। इस मुलाकात के चंद ही घंटों बाद लीबिया की हाई काउंसिल ऑफ स्टेट की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को इरसाल करदा एक ख़त में मुतालबा किया गया कि ये मुज़ाकरात उस वक्त तक मुअत्तल कर दिए जाएं जब तक अस्करी मुज़ाकरात में खातिर ख़्वाह पेशरफ्त नहीं होती। वाज़ेह है कि लीबिया के मशरिक़ में एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम है और खलीफा हफ्तर की ज़ेर क़यादत ये फोर्सेज दारुल हुकूमत तराबलस पर कब्जे की कोशिश में है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की सरबराह मिशेल बेचलेट इस साल चीन के मुस्लिम इलाकों का दौरा कर सकती हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस साल सिंकियांग के सख्त कंट्रोल्ड मुस्लिम अक्सरती चीनी इलाके के मुमकिना दौरे की तैयारी करने वाली टीम को गैर एलानिया रसाई दी जानी चाहिए। मिशेल ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि हम चीन में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहराई से तज्जिया करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक गौर अक़लियत के लोगों की सूरत हाल भी शामिल है।
मिशेल ने चीन की जानिब से इस खित्ते के दौरे की दावत का खैर मकदम भी किया। और अब खबर मलेशिया से है, जहां सियासी बहरान के दरमियान नई हुकूमत की तश्कील के लिए दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। मलेशिया के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने मुल्की बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह से मुलाकात की। मलेशिया में नई हुकूमत की तश्कील के लिए कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद और अनवर इब्राहिम पेश हैं। दोनों नई हुकूमत की तश्कील के लिए हिमायत जुटाने में लगे हुए हैं। मलेशिया में सियासी बहरान के खात्मे के लिए मुल्की बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह मशावरत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने जुमेरात को महातिर मोहम्मद को शाही महल में तलब किया और उनसे नई हुकूमत की तश्कील को लेकर बातचीत की। सियासी गलियारों में ऐसे खबरें गश्त कर रही हैं कि महातिर मोहम्मद के पास इख्तिदार में वापसी करने के लिए दरकार हिमायत हासिल है। मुलाकात के बाद महातिर मोहम्मद ने कहा कि पार्लियामेंट अगले हफ्ते एक नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेगी और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो नए इंतखाबात कराए जाएंगे। महातिर मोहम्मद ने कहा कि बादशाह ने फैसला किया है कि 2 मार्च को पार्लियामेंट में नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। The result is that he cannot find anybody with a distinct majority, and because he doesn't get a distinct majority, he says that the right forum would be the parliament, Dewan Rakyat. So Dewan Rakyat will be called on the 2nd of next month in order to determine who gets the majority support in the Dewan Rakyat to become the next Prime Minister. However, if the Dewan Rakyat fails to find a person with the majority, then we will have to go for a snap election. वाज़ेह के मुल्की बादशाह ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 222 कानून साजों से मशावरत की थी और ये जानना चाहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से किसी की तायद करेंगे या फिर वो नए इंतखाबात को तरजीह देंगे। ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के 24 फरवरी को अचानक इस्तीफे के नतीजे में बरसरे इख्तिदार मखलूत हुकूमत का खात्मा हो गया था, जिसके बाद से नई हुकूमत की तश्कील के लिए महातिर मोहम्मद और इनके हरीफ अनवर इब्राहिम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वापसी 94 साला महातिर मोहम्मद के लिए एक काबिले जिक्र कारनामा होगी, जो इस वक्त दुनिया के सबसे बूढ़े सियासी रहनुमा हैं। बुध को महातिर मोहम्मद ने कहा था कि अगर उनकी वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वापसी हुई तो वो गैर जानिबदार हुकूमत तश्कील देंगे। ताहम अनवर इब्राहिम के कैम के साथ साथ UMN और इस्लामी जमात ने महातिर मोहम्मद की मुजव्वज़ा गैर जानिबदार हुकूमत को मुस्तरद कर दिया था। अनवर इब्राहिम ने कहा था कि पाकतन हड़प्पन इत्तेहाद ने इन्हें वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में 29 फरवरी को होने वाले अमन मुआहिदे का सेहरा अपने सर बांध रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान मुफाहमती अमल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, जिसके एतराफ़ में पाकिस्तान को मुदाखलतकार की बजाय सहूलतकार तस्लीम किया जा रहा है। महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने 2 टूक फैसला किया था कि वह अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, इसलिए वहां के सदारती इंतखाबात में हमारा कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं था। अफगान सदारती इंतखाबात के नताइज पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, ताहम हमारी ख्वाहिश है कि इस अंदरूनी मामले के बायस अमन के सफर में तातुल पैदा न हो, जो बहुत मेहनत के साथ तय किया गया है। ख्याल है कि कतर ने पाकिस्तान को अमन माहिदे की तकरीब में शिरकत की दावत दी है और शाह महमूद कुरैशी इस तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। यूनान में लेस्बोस और चियोस जज़ायर पर मुहाजिरीन के नए हिरासती मराकज़ की तामीर के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ मकामी रिहायशियों की जानिब से चौथे रोज भी एहतजाज जारी है। इन जज़ायर पर पहले ही मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मकामी मीडिया के मुताबिक चंद मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। लेस्बोस में मुजाहिरीन ने एक फौजी कैंप का मुहासरा भी किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। शब बखैर।